So now, when we met last time, we started with unit and measurement topic of 11th standard, and I hope everybody who is watching this lecture now has already gone through my previous lecture or the previous session that we had. In that, we started with what exactly is science. So we say science is systematic study of knowledge, and physics is study of all natural phenomena, or you can say anything and everything that is happening around us. Then we say that when you want to study anything systematically, you have to measure it, you have to quantify it. जैसे मैंने आप लोगों से एज का एग्जाम्पल, मास का एग्जाम्पल आपसे पूछा था, कुछ लोगों ने राइट आंसर भी दिया था और कुछ लोग गड़बड़ कर गए थे और देन दे रियलाइज कि कहाँ मिस्टेक हो रही थी. So for any measurement, we required two things. One was a number and the second was unit. Number we already know. Now what exactly is unit? So then we defined unit as a standard of reference used for the measurement of physical quantity. Okay, what is a unit? A unit is a standard of reference used for measurement of any physical quantity. This is what we have done. Then हम किसी को भी unit choose नहीं कर सकते. That unit has to have some requirements or conditions for selection of unit. It should be universally accepted. It should be easily available, easily reproducible, should not change with time or place. These were few characteristics that a unit should have. Then we said that all the physical quantities can be classified or divided. Acha, what is a physical quantity? So physical quantity is something that can be measured. Then we divided physical quantities into three categories. The fundamental quantities, then we had derived quantities, and we also had the assisting quantities or the supplementary quantities. फिर मैंने आपसे कहा कि अगर आप फंडामेंटल और सप्लीमेंट्री बाय ऐड कर लो, so anything other than these will always be derived quantities. So now what are fundamental quantities? So we said fundamental quantities are those physical quantity which do not depend on any other physical quantity for its measurement. Fundamental quantities are those physical quantities which do not depend on any other quantity for its measurement. Supplementary quantities are the one which assist the fundamental quantities. Now, then we by-hearted all the 7 fundamental quantities with a word that was LMT tail. Very good. L is for length, M is for mass, T is for time, T is for temperature, A is for amount of substance, L is for luminous intensity, and E is for electric current. Okay. Then what are derived quantities? Acha, for supplementary quantities we had plane angle and solid angle. Plane angle is the angle between the line. Solid angle I said is the angle subtended by an area at a point. So that is the reason why हमने formula भी देखा था. It is area divided by distance का square for solid angle. Then we discuss fundamental unit. तो जो fundamental quantity है उसके units को हम बोलेंगे fundamental units. So the units of fundamental quantities are called as fundamental unit. For length we had meter, for mass we had kilogram, for time we had seconds, then for temperature we use Kelvin, then we have candela, or for luminous intensity, mole for amount of substance, and ampere for electric current. In between we also discussed that earlier we had different systems of units like the CGS, FPS, MKS, but then later on all the scientists decided to follow a single system of unit, that is SI unit. Okay, so that the exchange of data between two countries becomes relatively easier. So I guess this is what we had done in the last class. Towards the end I also discussed few examples. I told you by heart fundamental quantities, by heart supplementary quantities. Other than these all are derived quantities. So I took example of speed, then velocity, acceleration, force, power, pressure. All these are all these are derived quantities because these quantity depends upon fundamental quantities. Now this session, so this is what we had done in the last class. Now in today's session we'll have a little more discussion about the same topic, unit and measurement. Okay, and a few numericals also I'll try to take. Now before we proceed further, see student, there are certain rules that we need to follow for writing the units. Okay, the chances that these type of questions will be asked in your college exam or even in entrance exam are very feeble. यहाँ बहुत कम chances है, but अच्छा होगा कि इतने जो set of rules है, you will find them in the PDF provided to you in the textbook. Textbook का जो PDF है वो around 8 rules are there, but few important ones I would like to discuss with you. जैसे बच्चों अगर कोई यूनिट साइंटिस्ट के नाम से है, फॉर एग्जाम्पल फोर्स का यूनिट हम न्यूटन कहते हैं,
सो जब यूनिट लिखते हो तो अगर आप ऐसे लिखोगे बच्चों तो ये गलत माना जाएगा। अगर कोई यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम से है तो या तो आप उसको एक सिंगल कैपिटल लेटर से डिनोट कीजिए, और अगर आपको पूरा नाम लिखना है तो ये ऐसा लिखा जाएगा। ग्रामेटिकली भले ये इनकरेक्ट हो, नाउन कैपिटल से स्टार्ट करेंगे, बट साइंटिफिक लैंग्वेज में बच्चों आपको ये फॉलो करना है, ये लिखना गलत होगा। सो जो एक रूल मैं आपको चाहूँगा कि आप इसको बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट या फॉलो करो, वो ये है कि अगर कोई यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम से है, जैसे जूल है या एम्पियर है या न्यूटन है या केल्विन है, तो ये यूनिट्स को वेन एवर यू आर राइटिंग, अगर आप सिंगल अल्फ़ाबेट यूज़ कर रहे हो तो साइंटिस्ट का नाम वाला अगर यूनिट है, जैसे मैंने नाम लिया न्यूटन, जूल, केल्विन, एम्पियर, या पावर की यूनिट वॉट एक्सेट्रा, सो एक सिंगल लेटर से अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे अल्फ़ाबेट से तो एक कैपिटल लेटर होगा। पूरा नाम लिखेंगे तो ऑल लेटर्स विल बी स्मॉल, ये गलत होगा, ठीक है। देन सेकेंड रूल जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा बच्चों, वो ये ऐसा है कि हमारी ये आदत पड़ जाती है कि हम ऐसे लिखते हैं कि लेंथ इज 5 मीटर्स। अब मीटर्स लिखना गलत होगा, मतलब आप यूनिट को प्लूरल फॉर्म में एक्सप्रेस मत कीजिए। 5 न्यूटन्स, 5 किलोग्राम्स। सो जो यूनिट है मीटर है, तो डिस्टेंस अगर आप मीटर में लिख रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो 20 मीटर, नॉट मीटर्स। सो प्लूरल फॉर्म ऑफ यूनिट को आप अवॉइड कीजिए। सो कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें जो हमको नहीं करनी है, मतलब जो स्टैंडर्ड गलतियाँ हमको नहीं करनी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सो पहला, अगर कोई यूनिट साइंटिस्ट के नाम से है तो आपका उसका इनिशियल कैपिटल में लिखिए। पूरा नाम अगर आप लिख रहे हैं तो सारे अल्फ़ाबेट्स स्मॉल यूज़ कीजिए। फिर यूनिट्स को प्लूरल फॉर्म में एक्सप्रेस मत कीजिए। एक और गलती जो बहुत सारे लोगों से होती है, जैसे मान लीजिए आपने सॉल्व किया और आपका आंसर आता है कि वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड, और ऐसे फुल स्टॉप आप लगाते हो या आप उसके पीछे से कॉमा लिखते हो। सो ये जो सिंबल है फुल स्टॉप, कॉमा एक्सेट्रा, इनको भी नहीं लिखना चाहिए। सो मैं फिर से रिवाइज करूँगा, साइंटिस्ट का नाम कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करेंगे। सिंगल अल्फ़ाबेट यूज़ कर रहे हैं, सिंबल अगर आप यूज़ करें तो एक, पूरा नाम लिख रहे हैं तो ऑल स्मॉल लेटर्स, प्लूरल फॉर्म में नहीं होना चाहिए, फुल स्टॉप कॉमा यूनिट्स के पीछे नहीं आना चाहिए। अच्छा, इसी सेक्शन में अगर हम आगे बढ़े तो जब आप किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को ऐसे एक्सप्रेस करते हो, जैसे मान लीजिए एक्सेलरेशन है, उसको हम लिखते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कई बार मैंने देखा है बच्चों, आप इसको अगर ऐसे लिखो ना, मीटर सेकेंड रेज टू -2, तो ठीक है, आपने 1/सेकेंड स्क्वायर को ऊपर लेकर आकर के ऐसे लिखा। सो दिस इज अलाउड। आप इसको ऐसे मत प्लीज लिखिए कि ms-2, इसको पढ़ा जाएगा मिली सेकेंड। दिस इज m into s टुगेदर स्टैंड्स फॉर मिली सेकेंड्स, समझा। सो जैसे बच्चों में बता दो, एरिया को हम मीटर स्क्वायर लिखते हैं, सो आप उसको मीटर इंटू मीटर तो मिलीमीटर हो जाएगा। तो इन चीज़ों को आप प्लीज़ अवॉइड कीजिए, ठीक है। सो इफ अ यूनिट इज रेशियो ऑफ 2 फिजिकल क्वांटिटीज या यूनिट्स, तो उनको आप पावर के टर्म में एक्सप्रेस कर, तो प्लीज हाइफन या डैश, कोई स्पेस छोड़ करके उसको आप लिखिए। क्या मेरी बात समझ में है? अच्छा, अब इसको कई बार मैंने देखा है कि आउट ऑफ क्यूरियोसिटी बच्चे ऐसे भी लिखते हैं और फिर पूछे सर ऐसा लिखा तो प्रॉब्लम क्या है, मीटर पर सेकेंड। प्रॉब्लम कुछ नहीं बच्चों, बट इट इज अगेंस्ट द रूल, सो प्लीज डू नॉट फॉलो सच कन्वेंशंस। आर वी क्लियर? ओके। सो जैसे अगर ऐसे डेंसिटी की यूनिट हम लिखते हैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं केजी मीटर, सम स्पेस के साथ ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे मत लिखिए, वो कुछ अलग ही मीनिंग होगा। तो ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर द होल रेज टू -3, जबकि वो मीटर रेज टू -3 है ना बच्चों। सो बेहतर होगा आप ऐसे ही उसको एक्सप्रेस कीजिए। इफ एट ऑल आप ऊपर लेकर के जा रहे तो सफिशिएंट स्पेस आप बीच में रखेंगे तो अच्छा है। अभी क्लियर? कभी कभी हम यूनिट्स को या वैल्यूज को पावर के टर्म में भी एक्सप्रेस करते हैं या प्रीफिक्स हम यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए टाइम बहुत छोटा है,
सो हम यूज करेंगे माइक्रो सेकेंड. मैं बताता हूँ. 1 माइक्रो सेकेंड. आप जानते हो सेकेंड फंडामेंटल यूनिट है. माइक्रो हम एक प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं, तो अब इसको इतना बड़ा अगर आप नहीं लिखोगे ऐसा लिखते हो 1 माइक्रो का म्यू एस. सो इट इज 1 माइक्रो सेकेंड. ठीक है, या 1 नैनो सेकेंड. सो इसको 1 स्मॉल एन एस ऐसे लिखा जाएगा, नैनो सेकेंड्स. इज दैट क्लियर? पक्का समझ में आ रहा है? फिर पीको, 1 पीको सेकेंड. तो जब आप इन दोनों को साथ में लिख रहे हैं ना बच्चों, तो नॉर्मली एक उसमें प्रीफिक्स होता है. इसलिए मैं वापस कह रहा हूँ कि आप जो लिख रहे थे मीटर सेकेंड, तो अगर आप मीटर पर सेकेंड को, जैसे मैं बताया था वेलोसिटी यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है. अगर आप इसको ऐसे लिख दो मीटर सेकेंड -1, अब पढ़ो आप इसको क्या रीड करोगे. ये रीड क्या जाएगा, मिली सेकेंड. मिली सेकेंड रेज़ टू -1. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. यू गिव सफिशिएंट स्पेस. क्लियर है बच्चों? तो ये कुछ स्टैंडर्ड मिस्टेक्स है जो हम करते हैं, एंड आई वुड सजेस्ट कि आप इन गलतियों को एग्जाम्स में प्लीज ना करें. समझ में आया ये? क्लियर? ओके, सो दिस वर सर्टेन रूल्स फॉर राइटिंग यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी. अब ये जो डिस्कशन मैं आपके साथ अब करने वाला हूं बच्चों, उसको प्लीज आप ध्यान से सुनिए, और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है ये. इसको हम पढ़ने वाले अंडर द हेडिंग ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ. मेजरमेंट ऑफ मास एंड मेजरमेंट ऑफ टाइम आर फिक्स. मतलब वो एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है, किसी को रेफरेंस लेकर के आप मेजर करोगे. पर जब मेजरमेंट ऑफ लेंथ डिस्कस करते बच्चों, तो चीजें थोड़ी यहाँ पर इंटरेस्टिंग होती है. इसलिए आप इसको जरा ध्यान से प्लीज जरा अच्छे से इसको समझिए आप. ठीक है? ओके, अब आप जब लेंथ मेजर करना चाहते हो, तो लेंथ बहुत छोटी भी हो सकती है, लेंथ बहुत बड़ी भी हो सकती है. तो छोटी लेंथ जैसे है, सो अगर लेंथ बहुत छोटी है तो उसको मेजर करने के लिए, ओके, सो जैसे मान लीजिए आई वाज बेसिकली सर्चिंग फॉर अ स्केल. सो आप लोगों को अगर आप विजुअलाइज कर सको, एक स्केल, छोटी स्केल आपके पास होगी 15 सेंटीमीटर वाली, उससे थोड़ी बड़ी आती है 30 सेंटीमीटर वाली, उससे बड़ी आती है 1 मीटर स्केल आती है, और उससे बड़ा वो मेजरिंग टेप आता है जो कारपेंटर या जो वर्कर्स होते हैं उनके पास आपने देखा होगा. सो इतने डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है. बराबर है? अच्छा, अब अगर मान लीजिए डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बड़े हैं, यहाँ से मून तक का डिस्टेंस, यहाँ से सन का डिस्टेंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या डिस्टेंसेस बहुत छोटे भी है, तो छोटे डिस्टेंस के लिए तो फिर भी शायद आपको पता होगा वर्नियर कैलिपर, बहुत अच्छे मीटर, दैट माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज, दैट यू हैव कम अक्रॉस. सो वी हैव मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ, मतलब अलग अलग मेजरमेंट्स करने के लिए अलग अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है. अब लेंथ को मेजर करने के लिए एक बहुत ही अच्छा मेथड है, उसको हम कहते हैं पैरेलैक्स मेथड. व्हाट इज इट? पैरेलैक्स मेथड. अब ये पैरेलैक्स मेथड होता क्या है, तो पहले मैं ये समझ, अब फर्स्ट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली इज पैरेलैक्स मेथड. आई होप, या मैं चाहता हूँ कि अभी राइट नाउ जब आप ये वीडियो घर पर देख रहे हैं, तो मेरे साथ आप ये एक्सपेरिमेंट कीजिए. आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट अपनी आंखों के सामने किसी एक डिस्टेंस पे रखिए ऐसे. ठीक है? अब अगर आप अपनी राइट आइज को ऐसे बंद करें, तो बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में, मतलब आप इस पेन के जो पीछे वाला स्पेस है उसके रिस्पेक्ट में पहले आप ऐसे देखिए उसको, फिर एक आप राइट आइज को क्लोज कीजिए, तो आपको लगेगा कि पेन थोड़ी सी मूव हुई है, पर एक्चुअली स्पीकिंग पेन जरा भी मूव नहीं हुई है. पेन वहीं की वहीं पर है. ज़्यादा मजा आएगा अगर आप पेन को वहीं रखें और दूसरी आंख को बंद करें. तो अगर आप ऐसे ऐसे करेंगे, नाउ सी, सो आपको लगेगा ऑल्दो पेन इज एट द सेम पोजिशन, पर आपको लगेगा कि पेन मूव हो रही है. सो ये सच में नहीं हो रही, बट लग रहा है कि हो रही है. सो द एपरेंट चेंज इन पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यू टू चेंज इन पोजिशन ऑफ द ऑब्जर्वर,
सर ऑब्जर्वर कहाँ चेंज हो, तो वहीं पर है, आपकी आंखें इज द ऑब्जर्वर। तो पहले ऑब्जर्वर राइट साइड पे था, अब ऑब्जर्वर, माफ कीजिए, पहले ऑब्जर्वर लेफ्ट साइड पे था, अब ऑब्जर्वर राइट साइड पर है। सो ऑब्जर्वर की पोजीशन चेंज हो रही है एवरी, मतलब आपकी एक आंख को आप एक ऑब्जर्वर मान लो। सो ऐसे आप कीजिए, so you'll observe that the position of the observer is, position of the object is changing. So this change in position of the object due to change in position of the observer is पैरेलैक्स, इसको हम पैरेलैक्स कहते हैं। अब इसकी मदद से हम बड़े डिस्टेंसेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे अभी थोड़ी देर में हम देखते हैं, पहले ये समझ में आया। अगर आप इसको सच में बहुत अच्छे से करना चाहते हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, तो आप ऐसे दो फिंगर, आपके दोनों इंडेक्स फिंगर एक दूसरे को पैरेलल रखिए, ठीक है। अब ये ट्राई कीजिए आपकी अपनी एक आंख को आप ऐसे क्लोज कीजिए, फिर दूसरी। सो इफ यू डू दैट, इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। इस पे फोकस कीजिए, पहले ऐसे देखो, इनका पोजीशन आपको दिखाई देगा, अब ऐसे लगेगा शिफ्ट हुई है। सो व्हेन यू डू दैट, आपको लग रहा है कि ये जो फिंगर्स है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव करें, हालांकि ऐसा होता नहीं। तो ये जो है इसी को हम कहते हैं पैरेलैक्स। इसका एक और एग्जांपल है बच्चों, अगर आप लोगों ने कभी ट्रेन से ट्रैवल किया है तो आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा, इवन कार से भी करो, बट कार में व्यूइंग स्पेस थोड़ा सा कम होता है, ट्रेन में अच्छे से आपको ये कोरिलेट करने को होगा। तो ऐसा होता है बच्चों की, जैसे मान लीजिए ट्रेन आपकी तरफ, मैं ऐसे ट्रेन इस डायरेक्शन में चल रही है और मैं ट्रेन की विंडो से जस्ट बाहर नीचे वाली चीज़ों को देखूं तो मुझे लग रहा है कि वो बहुत फास्ट जा रही है। पर वही अगर मैं थोड़ा सा आंखों को ऐसे ऊपर उठाऊं और थोड़ी सी दूर जो बिल्डिंग्स है उनको देखूं तो ऐसा लगेगा वो थोड़ा थोड़ा स्लो जा रही है, और थोड़ा दूर की चीज़ों को देखूंगा तो लगेगा अरे वो तो और भी स्लो जा रही है, और बहुत दूर जो माउंटेन्स है वो एकदम स्लो जाते हुए दिखेंगे। आर यू गेटिंग? क्योंकि अलग अलग ऑब्जेक्ट का आपकी आंखों पर जो बनने वाला एंगल है वो अलग अलग है। अगेन दिस इज ड्यू टू पैरेलैक्स। अब ये पैरेलैक्स के मेथड से हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं। क्या यहाँ तक सब साथ में? कैसे मेजर करते हैं, दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब तक जो मैंने आपको समझाया वो। सो अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज पैरेलैक्स, तो आप बोलोगे चेंज इन पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यू टू चेंज इन पोजिशन ऑफ द ऑब्जर्वर। जब आप कॉलेज स्टार्ट होगा और एक्चुअली आप इंस्ट्रूमेंट्स देखोगे, एमीटर, वोल्टमीटर, तो उसमें वो पॉइंटर होगा, ऐसे पॉइंटर, ये आपने शायद बचपन में स्कूल में भी देखा होगा। तो अगर आप पॉइंटर को एक पोजीशन से खड़े होकर देखो तो आपको लगेगा कि आंसर 10 मीटर है, सॉरी 10 डिवीजन का डिफ्लेक्शन है या 10 मीटर की रीडिंग है। और अगर आप थोड़ा सा अपने आप को चेंज कर, नहीं मुझे तो लग रहा है 9 है, मुझे लग रहा है 7 है, तो ये जो है ये भी ड्यू टू पैरेलैक्स है। इज दैट क्लियर? अब ये मेथड को हम यूज करते हैं इन कैलकुलेटिंग डिस्टेंसेस। कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो प्लीज पे अटेंशन। जैसे मान लीजिए ये आपकी आंखें थी, दिस इज योर I1 एंड दिस इज योर I2, और यहां दूर एक ऑब्जेक्ट था जो मेरा मार्कर पेन था वो, ठीक है ना। सो अब मान लीजिए डिस्टेंस D है और इस ऑब्जेक्ट दोनों आंखों पर जो एंगल बन रहा है वो मान लीजिए थीटा है, एंड सेपरेशन बिटवीन दीज टू आईज इज सपोज B, ठीक है। अब यहां पर मैं एक अप्रोक्सीमेशन यूज करना चाहूंगा बच्चों। सो कौन सा मैं बताता हूं क्या अप्रोक्सीमेशन होगा। अगर मैं कहता हूं कि डिस्टेंस B बहुत छोटा है, हालांकि अपने आंखों वाले एग्जांपल में ऐसा नहीं था, बट मान लीजिए कि ये जो डिस्टेंस है दोनों आईज का सेपरेशन, सपोज इट इज अराउंड 7-8 सेंटीमीटर्स, और जो पेन था वो मेरे आंखों से तकरीबन 2-3 मीटर दूर था, यानी 300 सेंटीमीटर दूर था। सो 5-6 सेंटीमीटर के सामने 300 सेंटीमीटर मैं कंपेरेटिवली बड़ा ले सकता हूँ। ओके, सो अगर ऐसा है बच्चों, सो यहाँ पर मैं वो बचपन का एक फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ। अगर आर्क लेंथ S है, ये एंगल थीटा है और ये R है, तो आप लिखते हो S इज इक्वल्स टू आर थीटा। याद है ऐसा कुछ? आर्क लेंथ S है, डिस्टेंस R है, सो आप यूज करोगे S इज इक्वल्स टू आर थीटा। वो तो आर्क लेंथ के लिए, यहाँ पर तो स्ट्रेट लाइन है। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ बच्चों कि अगर मान लीजिए सर्कल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल पर मैं 2 पॉइंट कंसिडर करता हूं, 2 पॉइंट ऐसे, यह एंगल थोड़ा छोटा है।
अब आप मुझे बताओ कि आर्क का लेंथ तो इतना है ना, ये, पर अगर मैं इन दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से भी ज्वाइन करूं, चलो अगर आप नहीं समझ पा रहे तो उसको जूम करते हैं. दिस इज योर आर्क लेंथ, ओके, और उसका स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ये हुआ. अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट इक्वल आता है. ये आप घर पर एज एन असाइनमेंट खुद ट्राई कर सकते हो. किसी पेपर पर बहुत बड़ा सर्कल बनाना, उस पर 2 पॉइंट्स लेना जो बहुत नज़दीक हो, फिर एक थ्रेड से आप आर्क का लेंथ मेजर करना, और वही थ्रेड से उसको स्केल से फिर कंपेयर कर लेना, फिर वही थ्रेड इन दोनों पॉइंट्स के बीच का स्ट्रेट डिस्टेंस मेजर करना. यानी एक बार ये डिस्टेंस लेना और एक बार ये डिस्टेंस लेना, दे विल बी ऑलमोस्ट सिमिलर. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? हो सकता है कि 1 या 0.1 मिलीमीटर का डिफरेंस है. कंडीशन क्या है? हाँ, ऐसे मत करना कि आपने 2 पॉइंट, 1 पॉइंट यहाँ ले लिया, 1 पॉइंट यहाँ ले लिया, फिर बोले सर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस में तो बहुत फर्क आया. ऑफकोर्स वो आने वाला है. मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब कहने का मतलब, क्योंकि देखो इन दोनों पॉइंट्स का जो एंगल होगा सेंटर पर वो काफी बड़ा हो जाएगा ना. मैं छोटे एंगल्स के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है. अब वैसे यहाँ पर बच्चों, अगर b बहुत छोटा है, इफ b इज वेरी 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 स्मॉल एज कंपेयर टू d, तो मैं बोलूंगा थीटा विल बी वेरी वेरी स्मॉल. एंड इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, क्या मैं यूज कर सकता हूँ b शुड बी इक्वल टू d इंटू थीटा, b इज इक्वल टू d इंटू थीटा. अब बच्चों अगर मुझे मेरे आइस, तो यहां से अगर मुझे ये दोनों आइस के बीच का डिस्टेंस पता है, अगर मुझे एंगल पता है, तो क्या मैं मेरी आइस से इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता हूं? सपोज ये p है, तो क्या मैं OP निकाल सकता हूं? हाँ. सिंस ये थीटा बहुत छोटा होगा, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम आने वाले. हैज एवरीवन अंडरस्टूड इट? हाँ, इसमें एक अप्रोक्सीमेशन है, या प्रैक्टिकली स्पीकिंग वैसे ही होता है. ये डिस्टेंस बहुत छोटा होगा एज कंपेयर टू ये डिस्टेंस, तो हम बोलेंगे थीटा, मतलब b इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू d, सो थीटा वुड बी वेरी वेरी स्मॉल. हाँ, एक बात और है बच्चों, जब आप ये अप्रोक्सीमेशन यूज करते हो, आपने मैथ्स में ऑलरेडी किया होगा, बट याद रखना ये एंगल रेडियंस में होना चाहिए. ये एंगल किस में होना चाहिए? रेडियंस में. थीटा हैज टू बी इन रेडियंस. b इज d इंटू थीटा. अब ये तीनों में से कोई भी 2 चीजें आपको पता होगी और थर्ड आप फाइंड कर सकते हो. Is that clear? Using method of parallax, we can easily find b if theta and d is given. We can easily find d if b and theta is given. We can easily find theta if d and b is given. और एक बात बच्चों, इस एंगल को पैरालेक्टिक एंगल भी कहते हैं. क्या कहते हैं इसको? पैरालेक्टिक एंगल. ओके, आई थिंक इट इज क्लियर. अब इससे लेंथ कैसे मेजर करते हैं वो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा. एंड वी विल स्ट्रेट अवे स्टार्ट विद क्वेश्चंस. ओके, सो नाउ यू कैन पॉज द स्क्रीन एंड प्लीज कॉपी इट. इसका एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा बच्चों. अपना अर्थ का शेप कैसा है बताओ? बचपन में क्या पढ़ा है स्कूल में? स्फेरिकल है. यानी कि अर्थ का शेप अगर स्फेरिकल है, तो अर्थ पर जितने भी रोड्स है, आपके घर के बाहर जो रोड है, आपके घर से आपके स्कूल तक का जो रोड है, वो सब स्फीयर का ही पार्ट है. सो दैट मीन्स वो कैसा होना चाहिए? स्फेरिकल होना चाहिए, कर्व्ड होना चाहिए. जबकि आपने देखा होगा रोड्स हमेशा आपको स्ट्रेट ही दिखते हैं. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इतने बड़े अर्थ का इंडिया छोटा सा पार्ट है, इतने बड़े इंडिया का वसई छोटा सा पार्ट है, इतने बड़े वसई, विरार, मीरार और भाईंदर जो भी है, उसने बड़े वसई, विरार, मीरार और भाईंदर का आपका एरिया एक छोटा सा पार्ट है. एंड दैट इज व्हाई इट बिकम्स ऑलमोस्ट अ स्ट्रेट लाइन. ओके, आई वुड स्टिल वांट टू क्लियर इट फर्दर. जैसे मान लीजिए इतना बड़ा ये अर्थ है, इस पर अगर मैं 2 पॉइंट लूँ, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट. अभी राइट नाउ अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ मैंने बोर्ड पर ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो स्ट्रेट लाइन है या हल्का सा कर्व्ड है? तो आप बोलोगे हल्का सा कर्व्ड है. ओके, आप चीटिंग मत करना. सोचो, अगर मैं ये पूरा ऐसे इरेज कर दूं, हाँ पूरा ऐसे इरेज कर दूं, अब आपको बोलूं चलो जो बोर्ड पे बचा वो क्या है, अब पक्का आप बोलोगे वो स्ट्रेट लाइन है. समझ में? अगर एक स्फीयर या कर्व या सर्कल का 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा है, तो जो आर्क लेंथ होगा वो ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस के बराबर होगा. ये अप्रोक्सीमेशन बहुत जगह हम यूज करने वाले 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स में भी. इज दैट क्लियर? ओके, सो नाउ इफ यू हैव फिनिश्ड कॉपिंग इट, और अब तक अगर नहीं किया है, आई एम गिविंग यू 1 मिनट, यू कैन प्लीज कॉपी इट डाउन. ओके, अब इस
पैरेलैक्स के मेथड से हम बहुत बड़े बड़े डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर सकते हैं। छोटे डिस्टेंसेस के लिए जैसे हमने बताया आपके पास ऑलरेडी मीटर स्केल है, सेंटीमीटर स्केल है, फुट स्केल है, या वो मेजरिंग टेप है एक्सेट्रा। पर मैं कहता हूँ अर्थ से लेकर सन तक का डिस्टेंस मेजर करो, अर्थ से लेकर के मून तक का डिस्टेंस मेजर करो, तो वहाँ पर पैरेलैक्स मेथड बहुत काम में आता है। ठीक है, इस पर कुछ क्वेश्चंस है जो अभी हम आज के सेशन में डिस्कस भी करेंगे, पर कुछ कन्वर्जन से बच्चों जो आपको आने चाहिए, और कुछ फिजिक्स के हैं, कुछ मैथमेटिक्स के हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, व्हाट इज वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये आपको जो पीडीएफ दिया उसमें है, ठीक है, वहां से रीड कर सकते हो। व्हाट इज वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? इट इज बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सन एंड सेंटर ऑफ अर्थ। What is it? It is the distance between center of sun and center of earth. What is one light year? इसको सिर्फ 1 ly भी लिखते हैं। 1 light year is distance traveled by light. अच्छा, by the way this value is 1.496 into 10 raised to 11 meter. 1.496 into 10 raised to 11 meter. Now what is 1 light year? It is a distance traveled by light in 1 year. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? ये कैलकुलेट करना इजी भी है, देखो मैं बताता हूँ। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। सो स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ आप पढ़ चुके हो। टाइम, एक साल का टाइम क्या होगा? 365 डेज। सो इनटू, अगर मैं सेकेंड्स में, बिकॉज ये मीटर पर सेकेंड है, सो इनटू 365 डेज इंटू 24 आवर्स का 1 डे इंटू 60 मिनट्स का 1 आवर और 60 मिनट्स का 1 आवर इंटू 60। सो इसको, इस पूरे नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, सी दिस इज, ये दिस इंटू दिस गिव्स यू डेज, सॉरी ये डेज है, दिस गिव्स यू आवर्स, दिस विल गिव यू मिनट एंड दिस विल गिव यू सेकेंड। सो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। दिस इज वैल्यू ऑफ 1 लाइट ईयर। सो ये दो टर्म क्वेश्चंस में काम आते हैं, तो मैंने बता दिया आपको। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सन एंड सेंटर ऑफ अर्थ इज 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, दैट इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक और बात बच्चों, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड 1 एम्स्ट्रॉन्ग यूनिट दोनों अलग अलग है। एम्स्ट्रॉन्ग भी डिस्टेंस का यूनिट है, जिसका वैल्यू होता है 10⁻10 मीटर्स। तो इनमें कंफ्यूज मत होना बच्चों। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट and 1 Armstrong are two different things. Astronomical unit is astronomy के साथ डील करता है, ऐसा याद रखने का तरीका। सो सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस, सेंटर ऑफ अर्थ से सेंटर ऑफ सन के बीच का डिस्टेंस। लाइट ईयर, लाइट ने एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब इस पर बेस्ड एक सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करें तो अच्छा है बच्चों, वो ये वाला है। So this is given to you in PDF format. Okay. चलिए अब एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो कि ज़्यादा अच्छा होगा अपने लिए। देखो क्या लिखा है, इट इज़ अ सॉल्व्ड एग्जाम्पल फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक इटसेल्फ। 1.2 में लिखा है, अ स्टार इज 5.5 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। एक स्टार है जो अर्थ से 5.5 लाइट ईयर्स अवे है। How much parallax in arc second will it subtend when viewed from the two opposite points along the orbit of the earth? इसको अच्छे से रीड करो और समझने की कोशिश करो। A star is 5.5 light years away from the earth, यानी एक स्टार है जो अर्थ से 5.5 लाइट ईयर्स दूर है। How much parallax, यानी वो एंगल, पैरालिक्टिक एंगल, इन आर्क सेकेंड, उसका मतलब मैं समझाता हूँ। Will it subtend when viewed from the two opposite points along the orbit of the earth? Okay, अब ये जो लास्ट का लाइन है, along the two from 2 points along the orbit of the earth, इसका सिग्निफिकेंस मैं बताता हूँ। जैसे मैंने जब आपको पैरेलैक्स का एग्जांपल दिया था, या हमने जो कैलकुलेशन किया था, हमने 2 आइज ली थी, बराबर।
वैसे ही बच्चों अगर मान लीजिए, आप समझो ध्यान से, उस क्वेश्चन पर हम 2 मिनट के बाद आते हैं कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करके। जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, ये चलो मैं ऐसे लेता हूं, ये अपना अर्थ है, और यहां दूर एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए वो सन है, वो मून भी हो सकता था। अब आपको बोला जाएगा कि ये डिस्टेंस फाइंड करके बता। सो अपने एग्जाम्पल के हिसाब से बच्चों, सन ऑब्जेक्ट हुआ, अर्थ यानी हम लोग हुए। अब अर्थ के सरफेस पे आई विल कंसिडर 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स, यानी अपनी आईज हुई E1 और E2। रिलेट कर पा रहे हो? अब होगा क्या बच्चों पता है, मेरे एग्जाम्पल में एक ही आदमी की 2 आंखें थी, इस एग्जाम्पल पे क्या होगा, 2 अलग अलग लोग होंगे। दिस विल बी पर्सन 1 जो E1 पर खड़ा है, दिस विल बी पर्सन 2। सो एट द सेम टाइम 2 ऑब्जर्वर्स will observe sun from 2 diametrically opposite point on the surface of the earth। अर्थ के सरफेस के 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स पर 2 लोग खड़े हैं और दोनों सन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्या जो बोला हो समझा? अब सन बहुत ज्यादा दूर है, तो आप सबको पता है कि ये जो डिस्टेंस होगा, अर्थ से सन का डिस्टेंस d, अर्थ से सन का डिस्टेंस d, और अर्थ की डायमीटर b। क्या बोल सकते हो, अर्थ का डायमीटर बहुत छोटा है एज कंपेयर टू ये डिस्टेंस, तो कंडीशन सेटिस्फाई, b इज लेस देन d। याद आया मेरे बच्चों? अब मैं बोल सकता हूं अगर यहां का जो पैरेलैक्टिक एंगल थीटा है, एंगल कितना है, थीटा, सो हम क्लियरली लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बोलो, कि b विल बी इक्वल टू d इंटू थीटा, s इज इक्वल टू r थीटा जैसा हुआ। सो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड सन, फिर से वही अप्रोक्सीमेशन, ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट इक्वल आएंगे, सो दैट d विल बी इक्वल टू b बाई थीटा। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो आपको चाहिए वो ऐसे निकाल सकते हो, d इज b बाई थीटा। क्या जो बोला वो समझ में आया? सच बोलो, क्लियर है बच्चों? सो d इज b बाई, इस तरीके से आप बड़े बड़े डिस्टेंस मेजर कर सकते हो। अब बोला जाए कि नहीं मून का डिस्टेंस बताओ, तो सन को हटा और मून बताओ। आर वी क्लियर? क्या जो बोला वो समझ में? अच्छा, अब मान लीजिए ये मून का डिस्टेंस आपको पता है, क्या कहते हैं, अर्थ के सेंटर से मून का डिस्टेंस अगर आपको पता है और आपसे बोला जाए अर्थ का डायमीटर बता, तो क्या होगा? वेरी गुड, सही सोचा आपने। दैट मीन्स आपको थीटा पता है, आपको डी पता है, आपसे बी पूछा गया। सो वही मैं कह रहा हूं, फॉर्मूला यही है, इन तीनों में से कोई 2 चीज पता होगी और एक आपको निकालनी आनी चाहिए। याद रखना कि थीटा रेडियंस में होगा अगर ये फॉर्मूला यूज किया तो। क्या सब साथ में है? ओके, सो नाउ लेट अस गो बैक टू दैट क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? Okay, so this will really help you to understand and solve that question. Okay, अब उस क्वेश्चन में एक वर्ड यूज किया है, पार सेकेंड, सॉरी आर्क सेकेंड। कैलकुलेट दी पैरेलैक्टिक एंगल इन आर्क सेकेंड। अब एंगल, हाँ आप साइमल्टेनियसली मैथ्स में वो चैप्टर पढ़ रहे हो, एंगल को हम डिग्री में मेजर करते हैं या रेडियंस में मेजर करते हैं, फिर आपको डिग्री और रेडियन में कन्वर्जन आता है, इंटर कन्वर्जन। डिग्री है तो रेडियंस में कन्वर्ट करना और रेडियंस है तो डिग्री में कन्वर्ट करना। अब होता कैसे बच्चों पता है, हम 60 सेकेंड्स को जब ऐड करते हैं तो वी गेट 1 मिनट। जब हम ऐसे 60 मिनट्स को ऐड करते हैं सो वी गेट 1 डिग्री। समझ में आया? 60 सेकेंड्स गिव्स यू 1 मिनट, 60 मिनट्स विल गिव यू 1 डिग्री। सो जब आप कहते हो एंगल 1 डिग्री है तो याद रखना उसमें 60 मिनट्स है, और जब आप कहते हो एंगल 1 मिनट है तो उसमें 60 सेकेंड्स है। ओके, अब आपको फाइनल एंगल सेकेंड्स में लाना है। सोचो, सबसे पहले आपका एंगल रेडियंस में आएगा। क्यों सर? क्योंकि अपने फॉर्मूले में थीटा रेडियंस में होगा। वो जो एंगल रेडियंस में आएगा उसको आप डिग्री में कन्वर्ट करोगे, उस डिग्री को आप मिनट में कन्वर्ट करोगे, और फिर आप मिनट को किस में कन्वर्ट करोगे? सेकेंड्स में। सो आपको एंगल आएगा रेडियंस में, आप रेडियन को कन्वर्ट करोगे डिग्री को, डिग्री को कन्वर्ट करोगे आप मिनट में, और मिनट को कन्वर्ट करोगे आप सेकेंड में। ये बहुत कुछ कैसा है पता है, जैसे आपको टाइम की मैं बात करूँ, ये एंगल है वैसे टाइम अगर ईयर्स में है, सॉरी देख
मैं भी ईयर्स नहीं, ईयर में है, तो आप उसको कन्वर्ट करोगे डे में, डे को आप कन्वर्ट करोगे आर में, आर को आप कन्वर्ट करोगे मिनट में, और मिनट को आप कन्वर्ट करोगे सेकेंड में। याद आ रहा है बच्चों? हाँ, ऑफ कोर्स ये कन्वर्जन फैक्टर अलग अलग है। अब अगर आपको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, रेडियन को डिग्री में, तो आप क्या करोगे, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करते हो। सो मान लीजिए 3 रेडियन है, तो क्या लिखोगे आप, 3 इंटू पाई बाय 180 बाय पाई। This will give you angle in degree. Into 60 you will get in minutes. Into 60 you will get in second. So ये था रेडियन, डिग्री, मिनट, सेकेंड। चलिए तो फिर से एक बार देखते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं बच्चों, यू शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर विद दिस थिंग्स, बिकॉज जब सोल्यूशन करेंगे उस वक्त डाउट नहीं आना चाहिए कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, ठीक है ना। एक्सक्यूज मी, जैसे मान लीजिए एंगल ऐसे दे रखा उन्होंने 5 रेडियन, तो क्या करोगे, 5 इंटू 180 अपॉन पाई, दिस विल बी डिग्री, इंटू 60 मिनट्स, इंटू 60 सेकेंड्स। सो ये जो फर्स्ट मल्टीप्लीकेशन है ये डिग्री दिया, ये जो सेकेंड मल्टीप्लीकेशन है मैं अलग कलर से ड्रॉ करूँ, दिस विल गिव यू इन मिनट, और जो थर्ड मल्टीप्लीकेशन है दिस चेंजेस टू सेकेंड्स। सो रेडियन को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए ये प्रोसेस होगा, रेडियन को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए ये प्रोसेस होगा, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए ये प्रोसेस होगा। सब साथ में, कुछ डिफिकल्ट नहीं, शायद चीज़ें नहीं है इसलिए आपको हैवी लग रहा होगा, बट दिस थिंग्स आर रिलेटिवली ईजी बच्चों। हाँ, हो सकता है 2-3 आफ्टर 2-3 मंथ्स विल बी लाइक क्या ईजी था और हमको टफ लग रहा था। जस्ट नीड टू गिव प्रॉपर टाइम एंड अटेंशन टू दिस क्वेश्चंस। क्लियर है बच्चों? ओके। सो ये आप चाहे तो इसी ऑर्डर में लिखोगे तो आसान होगा आपको। सो रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू मिनट्स एंड रेडियन टू सेकेंड। जैसे जैसे आगे जाओगे ये फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है आपको। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ लेट अस गो बैक टू दैट क्वेश्चन। उस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि कोई तो एक स्टार है जो अर्थ से 5.5 लाइट ईयर्स अवे है, ठीक है, एंड हाउ मच पैरेलैक्स इन आर्क सेकेंड विल इट सबटेंड व्हेन व्यू फ्रॉम द टू अपोजिट पॉइंट्स अलोंग द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। बहुत सारी बातें छुपी हुई है। सो अब कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए। ये वो स्टार मान लीजिए, ये सन है, सन। सो अभी सन को पिक्चर में क्यों लाया मैं बताता हूं। अलोंग द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, आप सबको बचपन में पढ़ाया होगा कि सन सेंटर में है और अर्थ उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, जैसे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की स्टोरी है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, तो अर्थ का ये ऑर्बिट है। सो इसके अराउंड अगर मैं अर्थ ड्रॉ करूं तो शायद अर्थ कुछ ऐसा बनेगा। इसका मैं ऑर्बिट ड्रॉ कर रहा हूं, तो अर्थ हो सकता है एक वक्त यहां पर है, टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स इन द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। तो सन के अराउंड जो अर्थ का ऑर्बिट है वो ये वाला है, यानी कि अर्थ की दो अलग अलग पोजीशंस है जो डायमेट्रिकली अपोजिट है। अब वो कह रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये 5.5 लाइट ईयर्स है। सही है बच्चों? अच्छा, और आपसे ये एंगल पूछा गया है, तो अब क्या आप ये निकाल, सी यू हैव टू फाइंड दिस एंगल थीटा। चलो बच्चों सोचो क्या आपको पता होना चाहिए। सो थीटा, तो दिस 5.5 लाइट ईयर्स ये डी की तरह एक्ट कर रहा है। सो आपको डी पता है? हाँ सर। थीटा फाइंड करना है? हाँ सर। क्या नहीं पता है? बी बी बी, ये डिस्टेंस नहीं पता है। अब ये डिस्टेंस उन्होंने इनडायरेक्टली दिया हुआ है। कैसे? मुझे पता है ये कौन है, सन, ये कौन, अर्थ। अर्थ के सेंटर से सन के सेंटर का डिस्टेंस, अर्थ के सेंटर से सन के सेंटर का डिस्टेंस, अर्थ के सेंटर से सन के सेंटर का डिस्टेंस इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। फिर जब अर्थ यहां से यहां पर आया तो ये अर्थ से सन के सेंटर का डिस्टेंस इज अगेन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सो मेरे प्यारे बच्चों, क्या मैं बोल सकता हूं, ये जो डिस्टेंस है अर्थ की दो पोजीशंस के बीच का, जो कि बी है फॉर्मूला में, क्या वो 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स है? मजा है ना?
इसीलिए मैं कह रहा हूँ ध्यान से आप देखोगे ना, यू विल रियली एंजॉय इट, कोई डिफिकल्ट नहीं है। फिर से करते हैं, ये स्टार क्वेश्चन में जो लैंग्वेज है वो इंटरप्रेट करना आना चाहिए। टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट इन द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। अर्थ किसको ऑर्बिट करता है? सन को। सो सन सेंटर में और अर्थ का ये ऑर्बिट मैंने ड्रॉ किया। टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ऑफ द अर्थ ऑर्बिट। अब आप एनालाइज कैसे करोगे? आपको ये डिस्टेंस पता है? हाँ सर। आपको एंगल ढूंढना है? हाँ सर। सो अब फॉर्मूला वाइज डी पता है, थीटा ढूंढना है, आपको बी पता नहीं है। डायरेक्टली क्वेश्चन में बी इज नॉट गिवन, बट इनडायरेक्टली इट इज गिवन। हाउ सर? प्लीज पे अटेंशन। सो अब ये ऑर्बिट ऑफ द अर्थ है, सन के सेंटर से अर्थ के सेंटर का ये डिस्टेंस, क्या हम इसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं? हाँ। सो ये, तो दैट मीन्स ये सेपरेशन कितना हुआ? 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। करेक्ट। नाउ आई विल यूज द फॉर्मूला। विच फॉर्मूला? कि एस आर थीटा, मेरा फॉर्मूला था बी इज इक्वल्स टू डी इंटू थीटा। कैलकुलेशन आसान नहीं बच्चों, आपको मेरे साथ रहना है। सो अब क्या करेंगे आप? अब आप लिखेंगे यहां से थीटा विल बी इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई टी। व्हाट इज वैल्यू ऑफ बी? 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। सो इट इज 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिवाइडेड बाई डी। डी का वैल्यू क्या है? 5.5 लाइट ईयर्स। अब बच्चों ये दोनों ही ऐसा यूनिट नहीं है ना लेंथ की। लेंथ की ऐसा यूनिट मीटर होती है। सो कभी भी जब आप कैलकुलेशन करो, कन्वर्जन करना है, ऐसा ही कन्वर्जन करना है। सो आप क्या करेंगे? 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को 2 इंटू, दिस इज वेयर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है आपको पता होना चाहिए। सो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मेरे बच्चों वॉज 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 डिवाइडेड बाय 5.5 लाइट ईयर्स। सो 5.5 इंटू 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15। इतने बड़े नंबर्स आ रहे हैं। ये एंगल आपका आएगा रेडियंस में। क्या जो मैंने बोला समझा? सो दिस यू आर गोइंग टू गेट इन रेडियंस। इतना समझ में? अब ये कैलकुलेशन सॉल्व कैसा करना है वो एक सेपरेट सेक्शन होगा जब मैं आपको लॉग एंटी लॉग एक्सप्लेन करना सिखाऊंगा। टाइमिंग में आपको ये बता रहा हूं कि मेजरमेंट के तरीके से हम डिस्टेंसेस कैलकुलेट कैसे करते हैं। आई एम नॉट एक्चुअली शोइंग यू कि सॉल्व कैसे करना है, वो एक सेपरेट सेक्शन होगा बच्चों लॉग का। डू नॉट वरी अबाउट इट। आज की डेट में आपके फिजिकल लॉग बुक नहीं है, दैट इज वाई इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सो ये सब्स्टिट्यूशन आपने कर लिया। आप खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए घर पर कैलकुलेटर से ही आप ट्राई कर लेना, टाइम भी। वंस वी क्लियर लॉग टेबल एंड ऑल दैट, फिर आप ये लॉग टेबल से भी सॉल्व करोगे। ओके, जब आप इसको सॉल्व करोगे, सो आफ्टर सॉल्विंग दिस यू आर गोइंग टू गेट 5.75 इंटू 10⁻⁻⁶ रेडियंस। बट उनको एंगल किस में चाहिए? आर्क सेकेंड में चाहिए। अब बच्चों आप मुझे सिखाओ क्या करोगे। प्लीज बच्चों, प्लीज खुद के ब्रेन पर जोर दो, स्टेप बाय स्टेप अपनी अप्रोच थी। रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करना, तो 180/π से मल्टीप्लाई किया, ये डिग्री में आया। मिनट्स में कन्वर्ट किया तो इंटू 60 किया। सेकेंड्स में कन्वर्ट करना तो इंटू 60 किया। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट फर्दर। फिर से एक बार, ये किस में था बच्चों? रेडियंस। इंटू 180/π गिव्स यू इन डिग्री, into 60 gives you in minute, into 60 gives you in second. So when you do this multiplication, your final answer will come in second. क्या मेरी बात सबको समझ में आई? Is that clear? Now this is a solved example in your textbook, तो वहाँ से आप इसका फाइनल आंसर देख सकते हो। I repeat once again, ये आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, पाई की वैल्यू आई होप आप सबको पता है। जब आप साइंस डिस्कस करते हो या साइंस में लेते हो या फिजिक्स सॉल्व करते हो, कहने का मतलब, तो you should take pi as 3.142. 3.142. Are we clear? आया समझ में? सो ये था एक क्वेश्चन बेस्ड ऑन पैरेलैक्स मेथड। ऐसा एक और क्वेश्चन है जो भी थोड़ी देर में हम डिस्कस करें। माई होल आइडिया ऑफ डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन इज बच्चों टू मेक यू रियलाइज कि क्वेश्चन को पढ़ के डेटा इंटरप्रेट कैसे करते हैं और थोड़ा बहुत कन्वर्जन। ऐसा यूनिट फिर ये रेडियन में उनको सेकेंड्स में चाहिए। सोचो अगर बोला नहीं होता, सिर्फ बोला होता कैलकुलेट द पैरालेक्टिक एंगल, हो गया, आंसर खत्म हो गया। पर उनको आंसर सेकेंड में चाहिए। सो रेडियन टू डिग्री, फिर इंटू 60 मिनट्स इंटू 60 गिव्स यू इन सेकेंड्स। पॉज द स्क्रीन एंड इफ यू वांट यू कैन कॉपी इट। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिससे और ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा कि पैरेलैक्स के मेथड को हम कैसे डिस्कस करते हैं। चलिए,
This is again a solved example from our textbook. See example 1.3. आप उसको रीड कर सकते हैं अपने लिए. Moon is at a distance of 3.84 into 10 to the power 8 meter from the earth. Moon का distance earth से इतना दिया है. If view from two diametrically opposite points on the earth, the angle subtended at the moon is 1 degree and 54 minutes. What is the diameter of the earth? फिर से एक बार, इस बार ये अर्थ है या अर्थ का ऑर्बिट है बच्चों? तो क्वेश्चन डिसाइड करेगा. टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ऑन द अर्थ, नॉट ऑर्बिट ऑफ द अर्थ. तो ये पूरा मेरा अर्थ हुआ. Yes, you will really enjoy it. I'm 100% sure. सिर्फ साथ में रहो. ये दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट हुए, तो ये डिस्टेंस बन गया डायमीटर ऑफ द अर्थ b. अब वो बोल रहे कि मून यहां पर, सपोज दिस इज मून, और अर्थ से मून का जो डिस्टेंस है वो दे रखा है आपको, प्लस ये जो एंगल है दैट आल्सो इज गिवन. आपको b की वैल्यू फाइंड करनी है. तो क्या हम फिर से बोल सकते हैं कि b इज इक्वल्स टू d इंटू थीटा. b इज इक्वल्स टू d इंटू थीटा. अब जो डिस्टेंस उन्होंने दे रखा है वो है 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8. So this is 3.84 into 10 to the power 8 मीटर, ये दिया हुआ है. और थीटा उन्होंने दे रखा है 1 डिग्री 54 मिनट्स. चलो मेरे बच्चों, अगर ये फॉर्मूला यूज करना है तो थीटा किस में होना चाहिए? रेडियंस में. ये किस में दिया हुआ है? डिग्री और मिनट दोनों यहाँ पर. बोलो भाई, डिग्री भी है और मिनट भी है. तो हम क्या कर सकते हैं? ओके, कैन वी से इट इज 1 डिग्री will be equal to 60 minutes. तो 60 minutes and 54 minutes, that is 114 minutes. 1 degree is 60 minutes, 54 minutes already था, तो it is 60 minutes 54 minutes, that is 114 minutes. फिर वो 114 minutes को आप किस में कन्वर्ट करोगे? वेरी गुड, रेडियंस में कन्वर्ट करोगे. एक तरीका ये है, एक तरीका ऐसे भी बच्चों, अगर आपको समझना है तो. सो दिस इज 54 मिनट्स. सो आपका थीटा हो जाएगा 114 मिनट्स. अब मिनट्स को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे आप? पहले मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड बाय 60. सो नाउ दिस इज इन डिग्रीज. ऊपर से जा रहा है, समझा? 1 डिग्री 60 मिनट्स, 54 मिनट्स 54 मिनट्स. सो इसको मैंने ऐसे लिखा. सो नाउ दिस इज 114 मिनट्स. टू कन्वर्ट दैट इनटू डिग्री आई विल डिवाइड बाय 60. भाई जब आपने डिग्री टू मिनट किया तो मल्टीप्लाई बाय 60 किया था, तो यहाँ डिवाइड बाय 60 करोगे. अब ये आंसर किस में आया? डिग्री में. आपको किस में चाहिए? रेडियन में. सो रेडियन टू डिग्री 180 बाय पाई करते थे, तो डिग्री टू रेडियन उल्टा पाई बाय 180. दिस विल बी रेडियन. अच्छा, डर लग रहा है? वापस से. दिस इज इन डिग्री, यू गेट इन मिनट्स, टोटल इन मिनट. When you divide by 60, you get in degree. Then you divide further by 180 by pi. यानी multiply by क्या करोगे? pi by 180. Now you got this angle in radians. अब मुझे बताओ, क्या आपको d पता है? Yes sir. थीटा पता है in radian? Yes sir. So d का वैल्यू क्या आएगा? d that is 3.84 into 10 to the power 8 into theta that is 114 divided by 60 into 3.142 divided by 180. This b will be in meter. ये आपका आंसर मीटर में आने वाला है. Is that clear? Again, फिलहाल इसका कैलकुलेशन हम नहीं डिस्कस कर पाएंगे लॉक टेबल नहीं होने की वजह से. इसको आप कैलकुलेटर से थोड़ी देर मतलब अपने लिए चेक कर सकते हो, या तो पीडीएफ में ऑलरेडी आपके पास उन्होंने आंसर दिया हुआ है. ऑन सॉल्विंग यू शुड गेट इट एज 1.274 into 10⁷ meters. On solving you get 1.274 into 10⁷ meter. This is what is diameter of the earth based on parallax का method. So मेरा मकसद ये था बच्चों आपको समझाना कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ से हम छोटे डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं और बड़े बड़े डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं. आपको मीटर स्केल यूज़ करना आता है, आपको छोटा स्केल यूज़ करना आता है, मेजरिंग टेप आप यूज़ करना जानते होंगे बिकॉज वो ईजी है. बड़े डिस्टेंस को मेजर करने का तरीका आज मैंने आपको पढ़ाया. आने वाले दिनों में या जब कॉलेज स्टार्ट होगा तो जब प्रैक्टिकल्स करोगे तो आपको बहुत छोटे डिस्टेंसेस यानी कि थिकनेस ऑफ द पेपर जिस पे आप लिखते हो या थिकनेस ऑफ द वायर, ये सब के लिए वर्नियर कैलिपर एंड माइक्रोमीटर स्क्रू भी आपको